Authentication is not easy, especially in the AI world. So, hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video. And in this particular video, I have something very exciting for you. So, if you're building a B2B AI application, which I assume you might be building, so in this particular video, I'm going to show you a product जो आपके B2B AI products के लिए authentication layer provide करता है. The main thing that I liked about this particular authentication service was the modularity. किस तरह से आप अपने AI एजेंट्स के लिए, आप अपने MCP सर्वर्स के लिए, आप अपने फुल स्टैक एप्लीकेशन के लिए ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर सकते हो, दैट टू इन अ मॉड्यूलर वे. You need OAuth, you can just pick it up and plug it in. You need MCP, you can just put it up and plug it in. You need SCIM support, you can just pick it up and plug in. And you need SSO support, just plug it up and done. And this particular thing also gives you organization management out of the box. सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले अबाउट दिस ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क नोन एज स्केल किट. एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा दैट व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपके फुल स्टैक प्रोजेक्ट के अंदर, एंड व्हाट आर द मेन थिंग्स जो इसको बाकी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर से डिफरेंट करता है. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. All right, so बात करते हैं about ScaleKit. So if you go onto the landing page of the ScaleKit, you actually get to know that what they basically do. So you can see that ScaleKit जो है it's an authentication platform for your AI application, okay? And अगर हम यहाँ पे scroll down करते हैं, this diagram is very nice. I really loved this particular diagram. तो इसमें हम थोड़ी देर में आते हैं that what this diagram says. But अगर हम यहाँ पर नीचे चलते हैं, you can see you have MCP authentication. तो अगर आप MCP servers build कर रहे हैं in the AI world, you can have authentication in front of your MCP servers. You have agent authentication. Let's say आप अपने agent को access देना चाहते हो अपने Gmail का, तो that is also possible. You have SSO, you have SCIM, जिससे आप users and groups को sync कर सकते हो. So all that is also possible right here. So एक काम करते हैं, quickly jump in करते हैं, right, that how to use it. हम ये सारी चीज़ों को यूज़ करके देखेंगे. Organizations क्या है, user management क्या है, passwordless authentication methods. So let's just do one thing. Let's just click on the start for free and मैं quickly यहाँ पर करूँगा sign up. So let's just wait for a while. So यहाँ पे हम करेंगे continue with Google. So ये मेरा एक अकाउंट है, इसको हम कर लेंगे choose. एंड उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू. तो यहाँ पे हम अपना एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं स्केल किट के ऊपर. ऑल राइट, सो यू कैन सी मेरा एक फ्री अकाउंट क्रिएट हो चुका है. सो अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक वर्क स्पेस. सो यू कैन जस्ट नेम इट लाइक पीयूष गर्ग, यू कैन जस्ट नेम इट योर ओन. सो मैं इसको नाम दूंगा पीयूष गर्ग वाईटी. सो हमारा एक वर्क स्पेस क्रिएट हो रहा है एंड इस वर्क स्पेस के अंदर वी गेट मल्टीपल इन्वायरमेंट्स आउट ऑफ द बॉक्स. सो हमें एक डेव इन्वायरमेंट मिलेगा, हमें एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट मिलेगा, सो दैट हम चीज़ों को मिक्सअप ना करें. So that is the main thing. So you are right now in the development environment. Configure and test your integrations here. Got it. So you can see अभी हम यहाँ पर हैं development environment में, but जब आप production पे जाओगे you can use a production environment. So this is really nice. And यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे guides हैं कि MCP authentication कैसे कर सकते हैं, agent authentication कैसे कर सकते हैं, and you have something known as full stack authentication. So इस particular button को हम click कर लेते हैं because this is what I am basically interested in. But उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक dashboard का overview देना चाहता हूँ. You can see you have a concept of organizations. So organizations क्या है? Every user is going to get an organization. तो जब भी एक user sign up करेगा, he will be a part of his own personal organization. But यहाँ पर organization APIs भी available है. So अगर आपको किसी यूज़र को किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइट करना है, दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल. तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे. यू हैव यूज़र्स, तो यहाँ पे आपको आपकी लिस्ट ऑफ यूज़र्स दिखेगी. राइट नाउ मेरे कोई यूज़र्स नहीं है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर दिखेगा. यू कैन इवन कन्फिगर MCP सर्वर्स. तो अगर आप किसी अपने MCP सर्वर के आगे ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो. दिस वन इज़ वेरी गुड, दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, सो एक काम करते हैं, लेट्स गो टू द फुल स्टैक गाइड. ओके, सो इसको हम फॉलो करते हैं. लेट्स सी हाउ वी कैन इनेबल ऑथेंटिकेशन इन आर नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन. सो इट्स वेरी सिंपल. हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन बना लेते हैं. सो यू कैन सी हियर इज माय टर्मिनल एंड यहाँ पर हम करेंगे npx create next app एंड इसको हम बोलेंगे माय स्केल किट ऐप. ओके, यू कैन जस्ट नेम इट एनीथिंग. रिकमेंडेड सेटिंग्स के साथ हम जाएंगे एंड ऑटोमेटिकली npm इंस्टॉल कर रहा है, तो इसको हम थोड़ी देर npm इंस्टॉल करने देते हैं. हमें क्या करना है, हमें ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स चाहिए होंगे. स्केल किट इन्वायरमेंट यूआरएल, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट. ओके, सो एक काम करते हैं, लेट्स गो बैक टू द डैशबोर्ड. एंड अगर हम यहाँ पर नीचे जाते हैं एंड वी गो इनटू द सेटिंग्स, सो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास सेटिंग्स हैं. सो यू कैन सी इन्वायरमेंट यूआरएल, क्लाइंट आईडी, और यहाँ से हमें मिलेगा क्लाइंट सीक्रेट. ओके, सो मैं क्या करूँगा, हमारा अभी npm इंस्टॉल इज स्टिल गोइंग ऑन, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा. ऑल राइट, सो यू कैन सी इंस्टॉलेशन हो चुकी है कंप्लीट. दैट्स वेरी गुड. इसको हम कर लेते हैं जूम.
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ, दैट इज़ डॉट env, एंड यहाँ से हम कर लेंगे इसको कॉपी एंड यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। सो हमें ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को पहले कॉन्फ़िगर करना होगा। सो इन्वायरमेंट यूआरएल, सो इन्वायरमेंट यूआरएल हमारे पास यहाँ से मिलेगा, दैट इज़ योर वर्कस्पेस नेम डॉट स्केल किट डॉट डेव। तो अगर आप डेव इन्वायरमेंट में हो यू गेट डॉट डेव, अगर आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यू गेट अ डॉट कॉम। ओके, सो इसको हम कर लेते हैं कॉपी एंड इसको हम कर देंगे प्लेस। सो ये हमने कर दिया प्लेस। फिर देन वी हैव आवर क्लाइंट आईडी। सो क्लाइंट आईडी को भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एंड क्लाइंट सीक्रेट हमें यहाँ पे एक जनरेट करना होगा। सो ये मेरे टेस्ट क्लाइंट सीक्रेट है। सो क्लाइंट सीक्रेट को भी हम यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट। सो हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हो चुके हैं सेट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर हम आगे चलते हैं, सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट योर सब डोमेन। अगर आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हो इट इज गोइंग टू बी डॉट डेव, अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हो इट इज गोइंग टू बी डॉट कॉम। सो आगे बढ़ते हैं, यू कैन सी हमें यहाँ पर npm इंस्टॉल करना है स्केल किट का SDK। सो इसको भी हम कर लेते हैं। सो यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करेंगे एंड npm इंस्टॉल स्केल किट -SDK स्लैश नोड। सो वंस इट इज इंस्टॉल्ड तो हमें एक इनिशियलाइज करना है स्केल किट का ऑब्जेक्ट। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज, मैं यहाँ पे यूजुअली क्या प्रेफर करता हूँ, आई विल क्रिएट अ फोल्डर नेम एज ऑथ एंड इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक स्केल किट हाइफन क्लाइंट डॉट tsx। ओके, डॉट ts एक्चुअली, एंड यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे हमारे स्केल किट को। गुड, एंड फिर हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्केल किट का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एंड ऑलरेडी हमने ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है वो हमने सेट कर दिए हैं, राइट। सो दीज आर सेम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। टाइप स्क्रिप्ट इज थ्रोइंग एन एरर बिकॉज उसको लग रहा है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स नहीं है, तो आप उनको मैंडेटरी ऐड कर सकते हो। एंड लेट्स जस्ट डू एन एक्सपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो स्केल किट का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, नाइस। सो अब हमारा जो ये एप्लीकेशन है दिस इज रेडी टू बी इंटीग्रेटेड विद द ऑथेंटिकेशन। सो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर npm run dev कर लेते हैं, हमारा डेवलपमेंट सर्वर इज गोइंग टू रन लोकल होस्ट 3000 के ऊपर ऑफ कोर्स। सो इसको हम करेंगे ओपन एंड यू कैन सी ये हमारा डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस का पेज है। सो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर पहले एक लॉगिन का बटन बनाना चाहता हूँ। तो हम इस पर्टिकुलर बटन को कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो हम जाएंगे ऐप, हम जाएंगे पेज के अंदर। सो यहाँ पे सर्च करते हैं डिप्लॉय का बटन किधर है। सो डिप्लॉय का बटन मुझे काफ़ी पसंद आया तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी एंड बाकी सब चीज़ें हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, वी डोंट वांट इट। मैं सिर्फ यहाँ पे डिप्लॉय नाउ का बटन चाहता हूँ। इस डिप्लॉय के बटन को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लॉगिन विद स्केल किट, या फिर आप इसको लॉगिन भी कह सकते हो। सो दिस इज द बटन दैट आई वांट टू हैव, लेट्स जस्ट कॉल इट एज लॉगिन। ओके, सो लॉगिन का हमने एक बटन बनाया एंड मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर एक href चाहिए। तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज इट्स वेरी सिंपल। अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, दिस ऑल इज ओके एंड लेट्स जस्ट कीप स्क्रॉलिंग डाउन एग्जैक्टली। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, दिस इज द फंक्शन जो हमें यूज करना है, दैट इज स्केल किट डॉट गेट ऑथराइजेशन यूआरएल। सो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं रिडायरेक्ट यूआरआई। सो यहाँ पर हमारा बिकॉज ये एक एसिंक फंक्शन कर लेते हैं हम इसको, एक एसिंक फंक्शन, इट्स अ सर्वर कंपोनेंट। सो ये है मेरा रिडायरेक्ट यूआरआई। सो रिडायरेक्ट यूआरआई को हम यहाँ पे कन्फिगर करेंगे टू बी, I'll just call it as http slash localhost, okay, 3000 slash auth slash callback। तो दिस इज माई रिडायरेक्ट URI। ओके, फिर हम क्या करेंगे, हमें स्कोप्स देने होंगे कि मुझे क्या क्या स्कोप्स चाहिए यहाँ पे। सो आई कैन जस्ट गिव इट एन ऑप्शंस ऑफ द स्कोप। सो ये हमारे ऑप्शंस बन गए। नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट से कि स्केल किट जो हमने अभी बनाया था, राइट, स्केल किट। सो यू कैन सी हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, स्केल किट क्लाइंट से, जो हमने अभी यहाँ पर बनाया था, राइट। सो ये जो हमने बनाया था यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं एंड वंस वी इंपोर्टेड हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, गेट ऑथराइजेशन यूआरएल। इसके अंदर हमें नंबर वन वी हैव टू पास द रीडायरेक्ट यूआरएल एंड सेकंड इज वी हैव टू पास द ऑप्शंस। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें एक ऑथराइजेशन यूआरएल रिटर्न करेगा। सो यू कैन सी अगर हम यूआरएल के ऊपर होवर करते हैं इट्स अ स्ट्रिंग एंड मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस यूआरएल को डायरेक्टली हमारे href के अंदर डाल सकते हैं। सो लेट मी जस्ट रिमूव इट। सो ये हमारा यूआरएल आ गया एंड टारगेट ब्लैंक को भी हम कर लेते हैं रिमूव। सो इफ आई जस्ट रिपीट, हमने किया क्या, हमने यहाँ पे स्केल किट को कहा मुझे ऑथराइजेशन यूआरएल चाहिए, हमने इसको रिडायरेक्ट यूआरआई दिया, मुझे यूआरएल मिला एंड मैंने उसको कन्फिगर कर दिया। नाउ हियर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम। अगर मैं यहाँ पर वापस जाके रिफ्रेश करता हूँ एंड इफ आई ट्राई टू क्लिक ऑन लॉगिन, एक एरर आएगा। सो इफ आई ट्राई टू क्लिक ऑन लॉगिन यू कैन सी द एरर मैसेज हेयर। सो द रिक्वेस्टेड रीडायरेक्ट यूआरआई इज मिसिंग। तो बिकॉज हमने जो यहाँ पर रीडायरेक्ट यूआरआई यूज़ करा है वो हमने अपने डैशबोर्ड में कन्फिगर नहीं किया। सो लेट्स गो बैक टू द डैशबोर्ड एंड हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे एप्लीकेशन डिटेल्स,
नॉट एप्लीकेशन डिटेल्स एक्चुअली, अगर हम यहाँ पे जाते हैं ऑथेंटिकेशन के अंदर एंड रीडायरेक्ट यूआरएल, तो हमें यहाँ पर एक यूआरएल ऐड करना होगा. सो दिस इज द यूआरएल दैट आई एम गोइंग टू यूज. इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, रीडायरेक्ट यूआरएल. ओके, सो यहाँ पे यू एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ मोर कॉन्फ़िगरेशंस इफ यू वांट टू डू. यू हैव ऑथेंटिकेशन मेथड, तो इसकी मैं बात कर रहा था कि आप यहाँ पर वो सब चीज़ें रजिस्टर कर सकते हो. एनीवे, लेट्स गो बैक एंड वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं. नाउ द ऑथेंटिकेशन शुड वर्क. सो यू कैन सी द ऑथेंटिकेशन इज वर्किंग. सो जस्ट बाय एडिंग वन लाइन ऑफ कोड यू कैन सी मैंने अपना पूरा एक ऑथेंटिकेशन इनेबल कर लिया. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मुझे यहाँ पर अपना ऑथेंटिकेशन करना है. सो एक काम करते हैं, वी कैन इवन डू ईमेल ऑथेंटिकेशन एंड वी कैन इवन डू कंटिन्यू विद गूगल, वट एवर यू वॉन्ट. सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ईमेल ऑथेंटिकेशन यूज़ करना चाहूँगा. सो आई कैन जस्ट से पीयूष कर्क. ओके, तो आप अपना अकाउंट यूज़ कर सकते हैं एंड कंटिन्यू. दिस इज गोइंग टू ट्रिगर एन ईमेल, तो जिसके अंदर आपके पास कोड जाएगा. तो यहाँ पे पासवर्ड नहीं है, इट्स अ पासवर्डलेस साइन इन. ओके, सो मुझे अब ये ईमेल को चेक करना है. सो लेट्स जस्ट क्विकली चेक द ईमेल. यू कैन सी दिस इज द ईमेल. तो ये हमारा कोड है, हम इसको क्लिक भी कर सकते हैं, हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे इसको करूँगा पेस्ट एंड कंटिन्यू. तो जैसे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, यू कैन सी हम कहाँ रिडायरेक्ट हुए, हमारे रीडायरेक्ट यूआरएल पे, जिसके अंदर मेरे पास एक कोड है. कैन यू सी दिस, मेरे पास एक कोड है. तो हमें इस पर्टिकुलर पेज को अब बनाना होगा. सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे ऑथ. ओके, ऑथ के अंदर हमने क्या कहा था, ऑथ स्लैश कॉल बैक. सो ऑथ, ऑथ के अंदर हम बनाएंगे कॉल बैक एंड इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, एक पेज डॉट टी एस एक्स. सो पेज डॉट टी एस एक्स, एक्चुअली में आप इसको रूट डॉट टी एस एक्स भी बना सकते हो बिकॉज इट कैन बी अ गेट राउट. सो मैं यहाँ पे करूँगा रूट डॉट टी एस. ओके, अब नेक्स्ट जेएस के अंदर यू नो दैट यू हैव बिल्ट इन राउट्स. तो यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट्स सर्च फॉर नेक्स्ट जे एस राउट्स. या सो यू कैन सी राउट हैंडलर्स. तो हमने रूट डॉट जे एस, रूट डॉट टी एस हमने बना लिया है. तो आगे चलते हैं, यू हैव टू एक्सपोर्ट अ फंक्शन. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक गेट फंक्शन को एक्सपोर्ट कर देंगे एंड वी हैव द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट. इसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमें बोलना होगा रिक्वेस्ट. सो यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे पहले console डॉट लॉग करते हैं. ओके, console डॉट लॉग टू द रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल. मैं देखना चाहता हूँ दैट मेरा जो यू आर एल है वो कैसा है. सो यू कैन सी अगर हम इसको console डॉट लॉग करते हैं एंड वापस जाके थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, आई एम नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स. द रीज़न इज यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हुआ, हाँ, बिकॉज हम यहाँ से रिटर्न नहीं कर रहे. सो लेट मी जस्ट डू अ क्विक रिटर्न. सो यहाँ पे हम करते हैं रिटर्न एंड आई विल जस्ट से रिस्पॉन्स. ओके, रिस्पॉन्स डॉट जेसन. अभी के लिए हम सेंड कर देते हैं मैसेज. ओके, ओके, तो बस अभी के लिए इतना ही कर देते हैं. तो रिफ्रेश कर लेते हैं, यू कैन सी इट्स वर्किंग. बट कैन यू सी दैट यहाँ पर मेरे पास जो यू है वो प्रिंट हो रहा है. यू कैन सी दिस इज द कंप्लीट यू जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर कोड है. अगर मैं थोड़ा एंटर करके दिखाता हूँ, सो यू कैन सी दिस इज द फुल यू एंड इसके अंदर कोड है. तो ये जो यू है ना, दिस इज स्ट्रिंग यू. हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यूआरएल में कन्वर्ट कर लेंगे. सो आई कैन जस्ट से कॉन्स्ट यूआरएल इक्वल्स टू न्यू यूआरएल रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल. देन व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पर console डॉट लॉग कर सकता हूँ, दैट इज सर्च पैरम्स. ओके, यूआरएल डॉट सर्च पैरम्स. यस, तो इसको एक काम करते हैं, इसमें हम गेट करके देखते हैं कोड को. तो अगर हम इसको सेव करते हैं, लेट्स जस्ट क्लियर इट आउट, दोबारा से रन करते हैं. तो लेट्स सी कि क्या मैं कोड को ले पा रहा हूँ. यस, यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर कोड आया क्या, या यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर क्या आया, मेरे पास यहाँ पर कोड आ गया. तो वंस यू गेट द कोड, आप स्केल किट को यूज़ कर सकते हो टू एक्सचेंज दिस कोड फॉर द टोकन. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पे बोलूँगा स्केल किट. ओके, जो हमने बनाया था, डॉट ऑथेंटिकेट विद कोड. यू कैन सी हम यहाँ पर पास कर देंगे कोड. सो हमें कोड कहाँ से मिलेगा, दिस इज बेसिकली हाउ आई गेट द कोड. सो आई कैन जस्ट से कॉन्स्ट कोड इक्वल्स टू दिस थिंग एंड यहाँ पर हम पास कर देंगे कोड को. एंड सेकेंडली आपको यहाँ पर अपना रीडायरेक्ट यूआरआई पास करना है. तो रीडायरेक्ट यूआरआई जो है, यूजुअली दिस शुड बी शेयर्ड वेरिएबल, बट ठीक है, अभी के लिए हम कॉपी कर लेते हैं. तो ये हमारा रीडायरेक्ट यूआरआई था. तो ये बेसिकली चीज़ मुझे क्या करेगी, मुझे एक ऑथेंटिकेशन का रिजल्ट देगी. सो दिस इज एन ऑथेंटिकेशन रिजल्ट. नाउ हियर इज अ प्रॉब्लम दैट अगर हमें यहाँ पर एक वैलिडेशन डालना होगा दैट इफ देयर इज नो कोड, अगर हमें कोड ही नहीं मिला, तो वी कैन जस्ट से रिटर्न रिस्पॉन्स. ओके, डॉट लेट्स से एक जेसन रिस्पॉन्स सेंड कर देते हैं, सेइंग एरर कोड इज मिसिंग. ओके, बट अगर हमें कोड मिल जाता है, अगर हमें कोड मिल जाता है, तो हमारे पास क्या आएगा, एक ऑथेंटिकेशन रिजल्ट आएगा. एंड अभी के लिए मैं जस्ट आपको ये ऑथेंटिकेशन का जो रिजल्ट है, इसको हम रिटर्न कर देते हैं.
अभी के लिए हम इस ऑथेंटिकेशन का जो रिजल्ट है उसको हम रिटर्न कर देते हैं जस्ट टू सी व्हाट आर वी गेटिंग। बट अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा यू आर गोइंग टू गेट एन एरर, द एरर इज ओके द कोड इज डन, सो यू कैन सी दिस इज बेसिकली व्हाट आई गॉट। यूज़र का मुझे ईमेल मिल गया, मुझे ईमेल वेरीफाइड मिल गया, मुझे आईडी मिल गया यूज़र का, मुझे उसका आईडी टोकन मिल गया, एक्सेस टोकन मिल गया एंड रिफ्रेश टोकन मिल गया। तो दैट मीन्स दिस यूज़र इज ऑथेंटिकेटेड। सो अगर हम यहाँ पर वापस जाते हैं हमारे स्केल किट के अंदर, यूज़र्स के अंदर, यू कैन सी आई गॉट वन यूज़र एंड इस पर्टिकुलर यूज़र की एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई। प्रिटी कूल राइट। सो यू कैन सी अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, दिस इज हिज पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज ओनली वन यूजर। अमेजिंग स्टफ। नाउ व्हाट आई कैन डू इज द बेस्ट पार्ट अबाउट स्केल किट इज दैट ये जो एक्सेस टोकन्स है ना, आप इनको क्या कर सकते हो, आप इनको स्टोर कर सकते हो एंड एज अ डेवलपर यू हैव फुल एक्सेस या फिर फुल फ्लेक्सिबिलिटी कि आप इनको कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई कैन डू इज, मुझे पता है ऑथ रिजल्ट है, what I'm going to do is I'm just going to take the access token, okay, मैं यूजर का access token लूंगा, that is authentication result dot access token, and I'm going to take the refresh token, uh, token equals authentication result dot refresh token। ना रिफ्रेश टोकन को आप यूजुअली क्या कर सकते हो, आप उसके डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो या फिर आप उसको कुकीज़ में स्टोर कर सकते हो एंड एक्सेस टोकन आप यूज़र की कुकीज़ में स्टोर कर दोगे। सो व्हाट आई वांट टू डू हियर इज़, मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टोर समथिंग इन द कुकीज़ राइट। सो कुकीज़ के अंदर हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, सो आई विल जस्ट से नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ओके, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पर हमारे पास है क्या कुकी। सो यहाँ पर व्हाट वी कैन डू इज आई कैन जस्ट से कॉन्स्ट, पहले हम एक रिस्पॉन्स बना लेते हैं, सो आई कैन जस्ट क्रिएट अ जेसन रिस्पॉन्स, सो आई कैन जस्ट से नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ओके, एंड इसके अंदर हम एक बॉडी दे सकते हैं दैट इज लेट्स से सक्सेस ट्रू। फिर हम क्या करेंगे, हम इस रिस्पॉन्स के अंदर बोलेंगे डॉट कुकीज डॉट आई वॉन्ट टू सेट अ कुकी। सो इस कुकी का हम नाम दे देते हैं दैट इज एक्सेस अंडरस्कोर टोकन, ओके, एंड व्हाट वी कैन डू इज इस एक्सेस टोकन की वैल्यू सेट कर देते हैं दैट इज इस एक्सेस टोकन एंड ऑफ कोर्स कुकी के जो पैरामीटर्स होते हैं। सो इसको एच टी टी पी ओनली ट्रू वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, बट अभी के लिए मुझे एक तो पाथ देना है, सो दैट इट इज़ अलाउड ऑन एवरी पाथ, एंड हम इसको देंगे एक मैक्स एज। तो यूजुअली मतलब आप इसको 1 आवर के लिए स्टोर कर सकते हो इस पर्टिकुलर कुकी को। सिमिलरली जैसे आपने एक्सेस कुकी को एक्सेस टोकन को स्टोर किया, हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे रिफ्रेश टोकन, एंड रिफ्रेश टोकन को आप अपने डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। इसको हम स्टोर कर लेंगे 30 डेज के लिए, राइट, बिकॉज रिफ्रेश टोकन इज ऑब्वियसली अ बिगर वन। तो 30 डेज के लिए हमारा जो यूज़र है दैट इज गोइंग टू बी लॉग्ड इन। इसका मतलब ये होता है कि अगर यूज़र 30 डेज तक वापस नहीं आता तो ही विल बी लॉक्ड आउट, सो दैट्स ओके। एंड फाइनली वी कैन जस्ट रिटर्न दिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। सो बहुत अच्छे, हमने एक पूरा हैंडलर जो है वो क्रिएट कर लिया है। सो इफ आई गो बैक एंड आई जस्ट डू अ रिफ्रेश, सो अभी यहाँ पर 500 आएगा बिकॉज वो जो कोड है वो हमने यूज़ कर लिया है, सो वी हैव टू री ऑथेंटिकेट। सो लेट्स जस्ट गो बैक ओके टू आर लोकल होस्ट एंड अभी एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट ओपन द इंस्पेक्ट, go to the network, not network, go to the application tab, and inside the application tab हम जाएंगे इसमें, you can see I have some cookies, इन सबको हम कर देंगे remove, okay, and थोड़ा इसको zoom out कर लेते हैं। So let me just make it here login. So जैसे ही हम इसको login करेंगे I should get a cookie, right? So you can see amazing, I'm getting success true, and you can see हमारे पास यहाँ पर access token refresh token आ गया है। इस एक्सेस टोकन को अगर हम कॉपी करते हैं, आई जस्ट वांट टू सी व्हाट इज द पेलोड ऑफ दिस एक्सेस टोकन, तो व्हाट वी कैन डू इज हम यहाँ पे जाएंगे JWT IO के ऊपर, सो जेसन वेब टोकन की जो वेबसाइट है, एंड इसके ऊपर हम इस टोकन को डीबग करके देखेंगे दैट व्हाट दिस टोकन इज कैरिंग। सो यू कैन सी अगर हम इसको डीबग कर रहे हैं, लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल, सो यू कैन सी आई गॉट क्लाइंट आईडी एंड आई गॉट रोल्स, आई गॉट किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए टोकन है, दिस OID इज अमेजिंग। तो मुझे यहाँ पे यूज़र की आईडी मिल गई, मुझे यहाँ पर ऑडियंस मिल गई, तो यू कैन सी दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम गेटिंग। तो ये है हमारे सारे क्लेम्स, ओके, सो दीज आर ऑल द क्लेम्स विच इज़ गुड। सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज, अगर हम यहाँ पर वापस चलते हैं, लेट्स से इफ आई गो ऑन टू दी होम पेज, तो मैं देखना चाहता हूँ दैट इफ यूज़र इज लॉग्ड इन और नॉट, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो इफ आई गो बैक टू द पेज, इट्स वेरी सिंपल, हमें पहले उस कुकी को रीड करना होगा। सो आई कैन जस्ट से हम यहाँ पे कुकीज़ को कैसे रीड कर सकते हैं, हमें यहाँ पर हेडर्स को यूज़ करना होगा, राइट। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हेडर्स, ओके। हेडर्स के अंदर आपको क्या मिलता है, आपको कुकीज़ का सपोर्ट मिलता है। सो आई कैन जस्ट से कॉन्स्ट हेडर्स, सॉरी नॉट हेडर्स, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कुकीज़, आई डोंट नो मैंने हेडर्स क्यों बोला। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक कुकी स्टोर मिल जाएगा।
सो आई कैन जस्ट से कुकी स्टोर डॉट गेट, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक्सेस टोकन को गेट करना है, एंड दिस इज गोइंग टू गिव मी द एक्सेस टोकन। सो एक काम करते हैं, पहले console डॉट लॉग करके देख लेते हैं कि क्या मुझे एक्सेस टोकन मिल रहा है। ओके तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, एम आई गेटिंग द एक्सेस टोकन? यस, आई एम गेटिंग द एक्सेस टोकन। यू कैन सी नेम क्या है, एक्सेस टोकन, वैल्यू क्या है, दिस थिंग। सो यू कैन सी आई एम गेटिंग द एक्सेस टोकन। तो बेसिकली व्हाट आई कैन से इज एक्सेस टोकन कुकी, एंड एक्सेस टोकन मुझे कैसे मिलेगा, एक्सेस टोकन कुकी डॉट वैल्यू। ओके सो जैसे ही मुझे ये एक्सेस टोकन मिला, ओके आई गॉट द एक्सेस टोकन। ओके अगर तो एक्सेस टोकन नहीं है तो यूजर लॉग इन कर लेगा। तो आई कैन जस्ट से कॉन्स्ट इज लॉग्ड इन इफ देर इज नो एक्सेस टोकन, राइट? इफ देर इज नो एक्सेस, इफ देर इज एक्सेस टोकन तो वो लॉग्ड इन है, बट अगर नहीं है तो सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट से मुझे करंट यूजर फाइंड करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आई कैन जस्ट से const something equals await scale kit dot मेरे को क्या करना है, मुझे इस एक्सेस टोकन को डिकोड करना है, राइट? तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं वैलिडेट एक्सेस टोकन, सो यहाँ पर मुझे अपना एक्सेस टोकन डालना होगा, राइट? एक्सेस टोकन अगर वो है, सो लेट्स अज्यूम दैट अभी के लिए वो एक्सेस टोकन है, तो दिस इज गोइंग टू गिव मी द करंट यूजर। अब ये जो करंट यूजर है, ओके जो ये करंट यूजर है, यू कैन सी, सो आई कैन जस्ट से वैलिडेट टोकन, ये क्या रिटर्न करता है, दिस इज रिटर्निंग द एक्सेस टोकन। तो ये मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है, लेट्स जस्ट ट्राई टू console डॉट लॉग द करंट यूजर। सो यहाँ पे देखते हैं व्हाट आई एम गेटिंग, यू कैन सी मेरे को करंट यूजर की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सो ऑडियंस मिल रहा है, एडमिन रोल, सब कुछ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। सो यू कैन सी आई एम एक्चुअली गेटिंग एवरीथिंग। तो ये है हमारा यूजर आईडी। तो मैंने टोकन को क्या कर लिया, डिकोड कर लिया, एंड मैं यहीं से क्या कर सकता हूँ, आई कैन इवन गेट द करंट यूजर्स इन्फॉर्मेशन। सो आई कैन जस्ट से स्केल किट डॉट user dot, you can see get user। okay so I can just say create membership, delete user, get user। तो get user की आईडी मुझे कहाँ से मिलेगी, करंट यूजर के अंदर आई कैन जस्ट से डॉट सब। सो दिस इज गोइंग टू गिव मी द करंट यूजर। ओके सो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, दिस इज एक्चुअली द टोकन रिजल्ट, इसको ना हमें टोकन रिजल्ट बोलना चाहिए। सो दिस इज योर टोकन रिजल्ट, टोकन रिजल्ट के अंदर से यू आर गेटिंग द करंट यूजर। सो करंट यूजर, एंड इसको हम कर लेंगे प्रिंट। सेव करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। ओके रिफ्रेश करते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। ओ यू कैन सी आई गॉट द फुल इन्फॉर्मेशन। सो यू कैन सी मुझे इस यूज़र का ईमेल मिल गया है, दैट ये इस यूज़र का ईमेल है, मुझे इसकी ऑर्गेनाइजेशंस मिल गई हैं, मुझे इसका सब कुछ मिल गया है। यू कैन सी दिस इज़ द यूज़र प्रोफाइल। फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह अभी है नहीं इस यूज़र का, बिकॉज हमने जब लॉगिन किया था इट इज़ नॉट देयर। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस यूज़र की प्रोफाइल को पहले अपडेट कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी क्लियरली। तो मान लेते हैं इसका जो गिवन नेम है दैट इज़ पीयूष, एंड दैट इज़ कर, एंड फ़ोन नंबर हम यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं अभी के लिए, राइट? एंड लेट्स जस्ट डू अ सेव। सो यू कैन सी हमने इसकी प्रोफाइल को अपडेट कर दिया है। नाउ इफ आई जस्ट रीस्टार्ट ऑब्वियसली एंड आई गो बैक, रिफ्रेश करते हैं, तो यू विल सी आई गेट द फुल इन्फॉर्मेशन। ओके द टोकन गॉट एक्सपायर्ड, टोकन एक्सपायर हो गया, एक्सेस टोकन जो था वो हमारा एक्सपायर हो गया। तो वी हैव टू डू अ लॉग इन वंस अगेन। ओके सो हमें इस कोड को थोड़ा सा करना होगा क्लीन अप। सो इस कोड को हम थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं। So what I'm going to do is I'm just going to put this particular part of the code into a try catch। तो पहले हम यहाँ पे करेंगे try कि भाई मेरे को करंट यूज़र दिखाओ, एंड यहाँ पर हम करेंगे कैच द एरर। अभी के लिए हम एरर को हैंडल नहीं कर रहे हैं। ओके आई जस्ट वॉन्ट टू डू अ लॉग इन वंस अगेन। सो लॉग इन करते हैं, एंड लेट्स कम बैक। तो लॉगिन मैं हो चुका हूँ। अगर हम यहाँ पर अब आएंगे वापस, तो व्हाट यू आर गोइंग टू नोटिस इज कि आपके पास करंट यूजर की पूरी इन्फॉर्मेशन है। यू कैन सी यू हैव फोन नंबर, ईमेल, you have given name, you have family name, you have ID of the user। So that means just by adding these three lines and you can just add this particular route, you can have the full authentication enabled। okay of course in production आप क्या करोगे, आप इस कोड के अंदर एक different पेज बनाओगे लॉगिन का, जहाँ पर you have to do this right, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर मेन पेज जहाँ पर आप चेक करोगे दैट यूजर लॉग्ड इन है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर जो एरर हैंडलिंग है वो आपके लिए एक तरह का टू डू छोड़ दिया है, तो यू कैन जस्ट डू ऑल द स्टफ, but you got the point that how to do the authentication using ScaleKit। Now coming back to the dashboard, coming back to the organizations,
everything in ScaleKit is an API call. How? You can just say, for example, अगर current user को एक organization create करना है, तो what you can do, you can just say ScaleKit dot organizations dot create organization. So आप यहाँ पर organization का कुछ भी name दे सकते हो, let's say XYZ org, okay? Then what you can do, you can just set the options. For example, इसकी कोई external ID, अगर आपके database में you have some ID, and once you create an organization, आप current user को उस organization का part बना सकते हो. तो everything is what? An API call. So you have organization management. And अगर आप चाहते हो कि किसी एक पर्टिकुलर यूजर को मेरे को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनवाइट करना है, इवन दैट इज पॉसिबल. कैसे? यू कैन जस्ट से सी स्केलकिट डॉट ऑर्गेनाइजेशंस डॉट इनवाइट. ओके, सो यहाँ पे हम सर्च करते हैं इनवाइट का. सो देर इज अ पोर्टल लिंक, देर इज एन अपडेट ऑर्गेनाइजेशन. So you can see here is the one that is user.create membership. आप यहाँ पर organization ID पास कर सकते हो, user ID पास कर सकते हो, and you can just say that you want to send email invitation and true. तो उस user को क्या होगा, invitation चला जाएगा to be a part of that organization. So यहाँ पर everything is what, an API call. And the best part is अगर मैं किसी organization के अंदर जाता हूँ, you can see what I can do. I can of course see the admin portal. ठीक है, अगर किसी को admin portal का आप link देना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो आपके एप्लीकेशन के अंदर से आप ये एडमिन पोर्टल ओपन कर सकते हो. सो लेट मी शो यू व्हाट दिस एडमिन पोर्टल इज. सो अगर किसी को खुद का साइन इन एक्सेस करना है, SCIM प्रोविजनिंग करना है, तो वो सब चीज़ें. एंड यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास है सिंगल साइन ऑन. आप यहाँ से सिंगल साइन ऑन्स को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो. तो आपको बस यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है, ऑटोमेटिकली फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन दैट सिंगल साइन ऑन विल बी इनेबल्ड. Then you have something known as SCIM provisioning, so that is also possible right here. And then you have something known as roles. ठीक है, तो आप यहाँ पे roles को भी configure कर सकते हो. So everything is just plug and play. You have MCP server support which I showed you. आपके पास यहाँ पर authentication का सब कुछ available है. You have a different authentication methods. Magic link and OTP something जो अभी हम use कर रहे हैं. You can go with pass keys, okay, जो कि enabled है. You can go with social logins. आपको माइक्रोसॉफ्ट इनेबल करना है, गिटहब इनेबल करना है, तो वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं. एंड यू कैन इवन हैव मल्टीपल अलाउड रीडायरेक्ट यूआरएल्स, यू हैव पोस्ट लॉग आउट यूआरएल्स. आप यहाँ पर खुद की सेशन पॉलिसी भी बना सकते हो. सो दैट इज ऑल्सो राइट नाउ पॉसिबल है. दैट कितनी देर के लिए अगर एक यूज़र लॉग इन करता है तो वो लॉग्ड इन रहेगा. एंड कमिंग ऑन टू द रूल्स एंड परमिशन, दैट होल थिंग इज ऑल्सो पॉसिबल राइट हियर. तो अगर आपको खुद के कुछ कस्टम रूल्स क्रिएट करने हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल राइट हियर. So it's a like full stack one stop solution for your authentication is what I'm basically trying to tell you. One more thing right here is कस्टम ब्रांडिंग. अभी आपने जो मेरा लॉगिन पेज देखा था दैट वाज वेरी सिंपल, वो कुछ ऐसा दिखता है, बट यू कैन गो हेड एंड यू कैन इवन अपडेट इट. फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई वांट ऑरेंज टू बी माई प्राइमरी कलर, आप वो भी कर सकते हो. लेट्स से आई वांट कि जो मेरा बैकग्राउंड कलर है राइट, जो मेरा प्राइमरी टेक्स्ट कलर है उसको आप ब्लैक करना चाहते हो, यू कैन जस्ट डू इट हेयर राइट. सो आई कैन जस्ट मेक इट एज ब्लैक. एंड उसके बाद आपका जो बॉर्डर रेडियस है आप उसको थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, मे बी यू लाइक द राउंडिंगनेस. ओके, सो यू कैन सी आप यहाँ पे कस्टम CSS भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं. सो एवरीथिंग इज जस्ट कॉन्फ़िगरेबल राइट हियर. एंड एडमिन पोर्टल को भी आप यहाँ पर पूरा का पूरा कस्टमाइज कर सकते हो. सो एडमिन पोर्टल इज ऑल्सो कस्टमाइजेबल. सिमिलरली यू हैव योर कस्टम ईमेल्स. आप अपने ईमेल्स को भी व्हाट यू कैन डू इज आप अपना खुद का प्रोवाइडर लेकर आ सकते हो राइट. So that is also possible right here, and sender's name and everything. Custom domain is also possible, but that's actually in the pro version of it. It's an add-on. सो अगर आप चाहते हो कि यू वांट टू यूज समथिंग लाइक auth.piyushkar.com, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है. यू हैव सपोर्ट फॉर वेब हुक्स. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेब हुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वेन एवर समवन लॉग्स इन, लेट्स आई कैन से दैट अगर कोई भी यूज़र साइन अप करता है तो मेरे को एक वेब हुक चाहिए, आई वॉन्ट टू ट्रिगर सम काइंड ऑफ नोटिफिकेशन इंटरनली, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है, वेब हुक सपोर्ट. यू हैव ऑथ लॉग्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंप्लायंसेस पॉइंट, दैट व्हाट हैपेंड, किस यूज़र ने क्या किया, वो सब यहाँ पर मेरे को लॉग्स दिखते हैं रियल टाइम में. यू हैव इंटरसेप्टर्स, लाइक इफ यू वांट टू हैव सम काइंड ऑफ इंटरसेप्टर इन बिटवीन, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो. So a lot of options, a lot of things are configurable here. Lot of it's a full feature rich authentication provider. So जितने भी relevant links है वो आपको नीचे description में मिल जाएंगे. Do check out ScaleKit. So all the relevant links are down in the description below. So that was all about this particular video. आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.